Hello all students, 10th standard SSC Maths 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें जो 1.2 प्रैक्टिस सेट है जिसका कंसेप्ट है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. तो वी आर गोइंग टू चेक हाउ टू सॉल्व अ सिस्टमैटिक वे of how to solve a graphical method. And what is the advantage of this video? You can watch this video as many times as you want so that concept will get clear in your mind. Exam point of view, graphical method अगर board exam में आता है तो वो 3 मार्क के नीचे तो बिल्कुल नहीं आएगा, because graphical method की length ज़्यादा होती है. You have to calculate coordinates, ये एक पार्ट होता है. यू हैव टू ड्रॉ एन एक्चुअल ग्राफ, ये दूसरी स्टेप होती है जिसमें बहुत सारी चीजें आज हम सीखेंगे, देखेंगे कि उन्हें कैसे टैकल करना है. तो आइए 1.2 एक्सरसाइज की कुछ सम्स, एक 2 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो चलिए शुरू करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.2 ग्राफिकल मेथड का. हमें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं एंड दे आस्क टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग ग्राफिकल मेथड. गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय ग्राफिकल मेथड. तो क्या करना है? नाउ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव जस्ट ड्रॉन अ स्केलेटन ऑफ ऑल द थिंग्स. वी हैव द इक्वेशन. नाउ आवर टास्क इज टू गेट एट लीस्ट 4 कोऑर्डिनेट्स for that particular line. Step number 1, इक्वेशन में सिर्फ एक अल्फाबेट, 1 अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड में लेके जाओ. नाउ दिस क्वेश्चन इज सिंपल बट इन बोर्ड एग्जाम you mostly get a little complicated equation. X plus y is equal to 5. It will become x, or you can have y is equal to 5 minus x. पहले एक इक्वेशन का देखते हैं, then we will check for second equation. Step number 1, keeping a single variable on left hand side like this and taking everything on right hand side. Step number 2, select any value, any number from -5 to 5 so that you will substitute in the place of x to get the value of y. -5 to 5 ही क्यों? जनरली हमारा जो ग्राफ होता है उसमें x एक्सिस के जो नंबर्स है, अगर मिडिल से हम y एक्सिस बनाए तो जनरली x एक्सिस के नंबर ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 तक जा सकते हैं. यहाँ पे भी सेम केस हो सकती है, y एक्सिस पे नंबर्स थोड़े ज्यादा आ जाए. तो इफ यू टेक अ वेरी लार्ज नंबर, मान लो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 या 12 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो शायद वो ग्राफ पे बैठेगा नहीं. दैट इज द रिकमेंडेशन, टेक द वैल्यू बिटवीन -5 to +5 और 6 to -6. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड स्टेप. In this equation, I will select any random value of y. Let x is equal to 1. When x is equal to 1, y will become y is equal to 5 minus 1. So y is equal to 4. Second, let x is equal to 2. So y is equal to 5 minus 2. Therefore, y is equal to 3. Let's have one more. चलो नेगेटिव ले लेते हैं. Let x is equal to -1. So y is equal to 5 minus of -1, that is 5 plus 1, so y is equal to 6. What if I take 0
तो भी चलेगा, बिकॉज इक्वेशन का जो टाइप है वो सिंपल है, वो x इज इक्वल टू 0, so y is equal to 5 minus 0, therefore y is equal to 5. In this case I am getting 4 different values of x for 4 different values of y. तो ये होने के बाद my job is to prepare a table showing these coordinates, x, y, x comma y. We have 4 points. When x is 1, y is 4. So my first coordinate is 1 comma 4. When x is 2, y is 3. So my second coordinate is 2 comma 3. When x is minus 1, y is 6. So my third coordinate is minus 1 comma 6. And my fourth coordinate, when x is 0, y is 5, that is 0 comma 5. This is the first step to find the coordinates of given equation. So ये मैंने coordinates यहाँ पे निकाल दिए. Plot करते समय I will explain you how to check the coordinates, how to cross check whether you have done calculations right or wrong. Same procedure I will make for equation number 2. यहाँ पे we'll keep one alphabet on the left hand side, taking others on the right hand side. Now here it is minus y. Better I will take it on the right hand side. It become plus. So x is equal to 3 plus y. Simple form. Now जैसे यहाँ पे हमने 4 values substitute किए, let's take any 4 values for this equation. It will become, let x is equal to, अभी right hand side में alphabet y है, so we will substitute for y. Let y is equal to, चलो यहाँ से 0 से शुरुआत करते हैं, 0. So x is equal to 3 plus 0, so x is equal to 3. Let y is equal to 1. Let y is equal to 1, therefore x is equal to 3 plus 1, so x is equal to 4. थर्ड वैल्यू चलो निगेटिव ले लेते हैं, कोई -1 लेते हैं. Let x is equal to y is equal to -1, therefore x is equal to 3 minus 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस y है, I am taking minus value, x is equal to 2. और एक माइनस वैल्यू ले लेते हैं. Let y is equal to, चलो what if I take -3, y is equal to -3, x is equal to 3 minus 3, therefore x is equal to 0. So जैसे ये कोऑर्डिनेट के हमने 4 पॉइंट्स निकाले, सेम वे 4 कॉम्बिनेशन we got for second equation. यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो कैसे लिखेगा, x y x comma y 1 2 3. तो we will substitute the value. जब y 0 था तब x का वैल्यू मिला 3. तो x is 3 when y is 0. My first coordinate 3 comma 0. Second, when y is 1, x is 4. So x 4 है जब y 1 है, 4 comma 1. Third, y minus 1 है तो x 2 है, so 2 comma minus 1. And when y is minus 3, x is 0. So 0 and minus 3. 0 comma minus 3. This is 50% construction for graphical method. अभी तक हम ग्राफ के ऊपर गए भी नहीं हैं. What are the steps? दिए हुए इक्वेशन के we have found out the coordinates. क्या coordinates आते हैं? This is the second equation. This is first.
अभी स्टेप 1 में क्या मिस्टेक होती है? ईदर यू कैन मेक अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन, वो तो बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशंस में, जितने आज तक मैंने पेपर्स देखे हैं मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन कैलकुलेशन। लेकिन एक सेकेंड मिस्टेक करते हैं, वो है कोऑर्डिनेट्स लिखते समय उल्टे लिख देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे x3 है और y0 है, क्योंकि जब y0 था तो x3 है, बट बिकॉज कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, माइंड गड़बड़ आ जाती है, सो द आंसर 3,0 की जगह पे वो लिख देते हैं 0,3। तो व्हेन यू आर रिटन सच उल्टा कोऑर्डिनेट, ग्राफ में प्लॉट करते समय भी तकलीफ आ जाती है। बट द ग्राफिकल मेथड का एक एडवांटेज है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द फॉल्ट, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कोऑर्डिनेट्स में मिस्टेक है, तो हमारा ग्राफ बनेगा ही नहीं। सो यू विल स्टक ऑन द ग्राफ। दिस इज अ गुड एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग ग्राफिकल मेथड। नाउ यू गॉट द 50%। नाउ इन दो टेबल्स को उठा के वी विल कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ। नाउ लेट्स गो फॉर सेकंड स्टेप। नाउ एज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने सब तुम्हारे सामने ड्रॉ किया है। एक और एग्जांपल लेंगे, इन दैट केस आई विल शो यू द फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स पार्ट फर्स्ट एंड देन वी विल सी द ग्राफ सेपरेटली। नाउ लेट्स प्लॉट दिस लाइन। First point is 1,4. As you know how to plot the points on the graph, first is always x-axis, second is always y-axis. So when it is 1,4, on x-axis it is 1, on y-axis it is 4. If we draw a two parallel lines for y-axis and x-axis, ये दो जहाँ पे meet करेंगे, that is my particular point. 1,4 will be this. You don't have to show those dotted lines जैसे हम 9th standard में दिखा देते हैं. You can directly show a vertex that is 1,4 over here. Second is 2,3. कहाँ पे आएगा? This is 2 on x-axis and this is 3 on y-axis. The point will be somewhere here. Next is -1,6. -1 कहाँ? On x-axis and 6 is on y-axis. तो चलो मैंने यहाँ पे 6 बनाया नहीं है तो 6 बना देते हैं यहाँ पे। तो -1,6 is point number -1 on x-axis and on 6 it is y-axis. It is like this. 0,5 कहाँ पे आएगा? 0,5. तो is this 5 correct or is this 5 correct? 0,5 मतलब on y-axis 5. अगर वो 5,0 होता तो मैं यहाँ पे ले लेता. So accurate point is this one. अभी कैसे समझेगा कि मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक है? After taking scale and pencil, तुमने ये 4 पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश की, तो अगर एक लाइन चारों पॉइंट से परफेक्ट जाती है, इट मीन्स माय कैलकुलेशंस आर परफेक्ट। मान लो 3 पॉइंट लाइन में आ रहे और चौथा पॉइंट किधर और ही आ गया, इट मीन्स आई एम 100% रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। तो कैलकुलेशन में जाके उसको फिर से चेक करेंगे। नाउ वी हैव ऑल 4 पॉइंट्स in collinear format, so I will join those 4 points to get a single line. X plus y is equal to 5. Now as I am drawing by free hand, तुम्हें scale pencil लेके ठीक से बनाना है so that you will get a 100% result. तो चलो अभी क्या क्या दिखाना है, what we want to show. लाइन बनाने के बाद लाइन पे इक्वेशन लिखना कभी मत भूलना. So x plus y is equal to 5 is the original equation. You are going to write it on the line. X plus y is equal to 5. Second important point, ये जो coordinates है वो coordinates लिखना मत भूलना. This is 1,6 minus 1,6. This is 0,5. ये था 1,4. And the last one is 2,3.
ये हो गया पूरा ग्राफ का प्रोसीजर फॉर फर्स्ट इक्वेशन। यही हम दोहराएंगे फॉर सेकंड इक्वेशन। चलो सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। 3,0 3,0 कहाँ पे आएगा? एक तो ये भी है और ये भी है, बट ये जब 0,5 था तब मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो 3,0 इज ऑन x एक्सिस। सो 3,0 समझ में आ गया? देन वी हैव 4,1। So 4,1 कहाँ पे आएगा? On x axis we have 4 and on y axis we have 1. So 4,1 will be somewhere here. Now I think 4,1 we are getting on the line. जहाँ से ये लाइन पास हो रही है 4,1 पे 2, -1, 2 and -1. So ये -1 and this 2, the result is somewhere here. And the last one is 0, -3. 0, -3 is going to be on my y-axis. Now these points are collinear. Take a scale and pencil and join them. Obviously students, I am showing you just by a free hand, so there may be the chances that line यहाँ वहाँ हो जाती है. But अगर तुम लोग इसका solution देखोगे, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। अगर मैं x एक्सिस पे वो पॉइंट से जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट से अगर नीचे लाइन डाल दूं, देन इट इज मीटिंग ऑन 4 ऑन x एक्सिस, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, देन इट इज मीटिंग ऑन द 1 ऑन द y एक्सिस। सो ये लाइन की प्रोसीजर पूरी कर देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। दिस इज 0, -3, this is 2, -1, this point is 0, 3,0, और जहां पे हमें सॉल्यूशन मिल गया, that point is also present 4,1 जो है, this is 4,1। जरूरी नहीं है कि दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो हमेशा हमें कोऑर्डिनेट्स में मिल जाए। यहाँ पे एक केस ले ली, उसमें फॉर्चुनेटली मिल गया 4,1। So we are getting the result 4,1 जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखे? I generally recommend कि you should write the final answer on the graph, below the graph by pencil, not by pen. We are not going to use pen on graph. पेंसिल से लिखे फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? फाइनल आंसर लिखेंगे x is equal to 4, y is equal to 1 is solution set of given equations, is solution set of given equations। ये हो गया पूरा प्रोसीजर ऑफ ग्राफिकल मेथड। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एंटायर पार्ट अगेन। कितने स्टेप्स है ग्राफिकल मेथड में? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन पार्ट, getting coordinates of given equation. Second step, graphical part, drawing the actual graph. Step number 1 में शुरू करते समय keep single alphabet, that is a variable, on left hand side. Take rest of the things on right hand side. Then from -5 to 5 or from -6 to 6, in this range select any random value for right hand side variable. From that you will get the value for left hand side, जैसे हमने यहाँ पे किया। Same task we will do for the second equation. What are the chances of mistake you may create while calculation? Sometimes you make calculation mistake. माइनस की जगह पे प्लस हो गया, 3 की जगह पे 4 हो गया। Second chance of getting a mistake, you will write coordinates उल्टा। 3,0 के जगह पे you will write 0,3. But what is a good advantage? You will easily find the mistake in the graph कि वो collinear नहीं हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चलेगा। Coming on the graph, students, you have to remember 5 points on graph. Point number 1, अगर तुमने scale नहीं लिखी है ग्राफ में, scale on both axis 1 centimeter is equal to 1 unit, अगर स्केल नहीं है
तो तुम्हारे 100% मार्क्स वहां पे जाएंगे, आधा मार्क तो फॉर श्योर तुम्हारा वहां पे जाएगा ग्राफ में। सेकेंड पॉइंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम होने चाहिए। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अगर ये नाम तुमने नहीं लिखे तो श्योरली तुम्हारे मार्क्स जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ये जो कोऑर्डिनेट्स है जो हमने इन टेबलों में निकाले, ये कोऑर्डिनेट्स को वो लाइन के ऊपर लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4, लाइन बनाने के बाद वो लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन से इक्वेशन की लाइन है ये अगर नहीं समझ में आया देन यू विल लूज द मार्क। सो यू हैव टू गेट दैट इक्वेशन। अभी मैंने एक लाइन पे लिख दिया, लेकिन जल्दी में था तो मैंने सेकेंड का इक्वेशन नहीं लिखा तो भी मार्क्स जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन इज x minus y is equal to 3. You have to write the equation. And fifth point, लाइन थोड़ी लंबी खींचो ताकि वो इंटरसेक्ट करके आगे भी जाए। और लाइन बोल रहे हैं ना हम लोग, वी आर सेइंग लाइन, सो इट्स योर जॉब टू शो एरोज एट द एंड। और ये 5 पॉइंट्स के अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ के ऊपर बोर्ड का क्वेश्चन नंबर जो है पेपर का वो डालने के मत भूले। एंड राइटिंग फाइनल आंसर बिलो दैट ग्राफ विद पेंसिल। ये सारी बातें समझ में आ गई? अगर यू वांट टू लिसन अगेन एंड अगेन, क्रॉस चेक ऑल दोस 5 पॉइंट्स कि ग्राफ में क्या क्या आना चाहिए। समझ में आ गया? Now let's take one more example in depth for graphical method. Okay students, अभी graphical method को हमने in depth देख लिया कि कैसे equation को solve करना है, कैसे उसके coordinates लाते हैं हम लोग, और कैसे उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में जो बातें हमें याद रखनी है इन डिटेल हमने 1 by 1 सारे पॉइंट्स देखे। तो ये समय जो सेकंड समय है इसमें मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट दिखाऊंगा, ग्राफिकल का पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि ग्राफिकल पार्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। डिफिकल्ट पार्ट होता है हमें खुद कुछ वैल्यू डिसाइड करके उसमें सब्स्टिट्यूट करना है और खुद से कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एक बार कोऑर्डिनेट्स मिल गए उसके बाद ग्राफ इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट पार्ट। तो वही कोऑर्डिनेट्स उठाओ, ग्राफ में अच्छे से प्लॉट करो और एक लाइन बनाओ। लाइन अगर जाती है चारों पॉइंट से तो आपका टेबल एकदम बराबर है, अगर नहीं जाती है देन वी नीड टू रीचेक द थिंग्स। तो अभी हम सिर्फ जो मेन पार्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे जो है कैलकुलेशन का पार्ट। सो हाउ टू कैलकुलेट सच इक्वेशंस, ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो इसको कैसे डील करें ये अभी आज हम सीखेंगे। ग्राफ आप खुद ट्राई करो। तो चलो स्टेप नंबर 1, एक अल्फाबेट ये साइड चाहिए, बाकी सब लोग वहां पे लेके जाओ। तो यहाँ पे -4y है, उसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, हो जाएगा +4y। सो 3x इज इक्वल टू 4y -7, बराबर। नाउ आई डोंट वांट एट 3 आल्सो, सो 3 भी चला जाएगा वहां पे। आई विल गेट x इज इक्वल टू 4y -7/3। मुझे एक इक्वेशन मिल गया जिसमें मुझे सिर्फ एक वेरिएबल x अकेला मिला, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड। नाउ एज अनऑफिशियल रूल यू शुड चेक द वैल्यूज फ्रॉम -6 to +6, कौन सी इसमें अच्छे से बैठेगी। इफ यू आर कंफर्टेबल विद डेसिमल देन यू कैन सिलेक्ट एनी रैंडम वैल्यू यू वांट। तो चलो मान लेते हैं व्हाट इफ आई टेक y इज इक्वल टू 1। थोड़ी अलग इंक यूज करते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो ये फर्स्ट केस, फर्स्ट वैल्यू लेट y इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 4 into 1 -7/3। और यू एग्री 4 - 7 -3 विल बी -1। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -1। सो जब y 1 है तो x आ गया -1। समझ में आ रहा है? तो चलो अभी सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं x की, y की। यहाँ पे जो y है लेट y इज इक्वल टू, कुछ ऐसा सोचे कि जो 3 के टेबल में आता हो
16 माइनस 7 का डिफरेंस होता है 9। तो मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, when y इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 7 अपॉन 3। 16 माइनस 7 9, 9 अपॉन 3 हो जाएगा 3। सो x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3। समझ में आ रहा है आपके? सो व्हेन y1 था x -1 मिला, जब y4 है तो x3 मिला। चलो और थोड़ा वाइड एंगल से सोचते हैं। चलो मुझे डेसिमल में नहीं जाना, आप रैंडम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 से डिवाइड तो वैसे भी आप कर पाओगे, लेकिन वैल्यू डेसिमल में जाएगी। अगर आपको ग्राफ में डिफिकल्टी आती है, वो डेसिमल 3.7 कैसे ले, 3.8 कैसे ले, आप अगर चाहते हैं कि नॉर्मल अपने अच्छे नंबर आए तो बेटर यू थिंक ऑन इट। तो चलो एक काम कर लेते हैं, व्हाट इफ आई टेक y इज इक्वल टू -5। अगर मैंने +5 डाल दिया तो 20 माइनस 7 वो हो जाता है 13। 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन अगर मैं -5 सब्स्टिट्यूट करूं तो देखते क्या रिजल्ट आता है। वो सेकंड इक्वेशन थोड़ा नीचे ले लेते हैं, थर्ड वैल्यू में लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू -5। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू -5 -7 अपॉन 3। -5 इंटू 4 -20, -20 -7 हो जाता है -27। ये क्या हो जाएगा, -27 अपॉन 3। -27 अपॉन 3 मतलब x का वैल्यू मुझे मिल गया -9। अब मुझे एक बात बतानी है, मेक श्योर कि आपके x एक्सिस के एंड तक -9 आ जाए। तो वैसे थोड़े y एक्सिस को आप थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बीच में ही वो y एक्सिस आ जाए। -9 को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा उसको आप राइट हैंड साइड अपने घुमा सकते हो कि वो -9 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो ध्यान रहे, जब बड़ी वैल्यू कोई आती है तो मेक श्योर कि वो ग्राफ पे बैठे। तो चलो अभी तक तो मैंने डेसिमल में एंट्री नहीं मारी है। व्हाट इफ एक वैल्यू डेसिमल की ले लेते तो क्या हो जाएगा? देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाके। डेसिमल की वैल्यू में एंटर कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं 10 ला सकूं तो 10 माइनस 7 होता है 3, लेकिन 4 के टेबल में ऐसा नहीं है कि 10 आ जाए। तो y में ऐसे क्या सब्स्टिट्यूट करूं जो मुझे इंटू 4 किया तो 10 मिले। 25 4 जा 100, तो 2.4 जा 10। तो what if I substitute y is equal to 2.5। अगर 2.5 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, x is equal to 4 into 2.5 minus 7 upon 3। So 2.5 4s are 10, 10 minus 7 that is 3 upon 3। तो मुझे x मिल जाएगा 1। तो आपको ये सोचना है, ग्राफ इज नॉट अ बिग डील। आपको क्या है, ये 4 पॉइंट मिल गए, चारों को ग्राफ के ऊपर सिर्फ प्लॉट करना है, लेकिन ये थिंकिंग पार्ट है, ये एनालिटिकल पार्ट है। आप सोचोगे वैसे आपके कोऑर्डिनेट्स बनते जाएंगे। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हैंडलिंग दीज नंबर्स। तो ग्राफिकल का ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। सेकंड इक्वेशन जो है वो देखेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, बट ये इक्वेशन कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आया है अच्छी तरह से। डिविजिबल बाय 3 के नंबर्स आप चेक कर सकते हो, वैसे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो, या फिर आप अगर डेसिमल से कंफर्टेबल है तो दैट इज फाइन। तो चलो इसका टेबल बनाते हैं, कैसे बनेगा। x -1 है जब y 1 है, तो मुझे पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, -1, 1। हम लोग गलती कहाँ कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स गलती से उल्टे दिख गए तो ग्राफ में गड़बड़ हो जाएगी। x की वैल्यू x के सामने, y की वैल्यू y के सामने, कोऑर्डिनेट्स x, y, कोऑर्डिनेट x, y, 1, 2.5। तो ये मिल गया मुझे टेबल इक्वेशन 1 का। आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड इक्वेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन पे ज्यादा ध्यान रहे। अभी लास्ट इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 0। तो ये
-2y को वहां पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y। ये 5 को भी वहां लेके जाओगे तो इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 2y अपॉन 5। ये थोड़ा सिंपल है, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। 5 के टेबल में ऊपर वैल्यू लाने की कोशिश करो ताकि डेसिमल ना आए। तो चलो कुछ 4 रैंडम वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। व्हाट इज y इज इक्वल टू 0? लेट y इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा 2 into 0 upon 5 0। ऑब्वियसली यहाँ पे x is equal to 2 into 0 upon 0, 2 into 0 upon 5। तो x का आंसर आ गया 0। 0 मल्टीप्लाई हो गया 0। सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं, चलो लेट y is equal to 5। y की वैल्यू लेते हैं 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x is equal to 2 into 5 upon 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। 5 कैंसिल हो जाएंगे 2। तीसरी वैल्यू ले लेते हैं, लेट y is equal to -5 ले लो। y is equal to -5। तो x की वैल्यू हो जाएगी x is equal to 2 into -5 upon 5। अगेन 5 कैंसिल बट माइनस साइन है। x is equal to -2। और फाइनली एक और कोई रैंडम वैल्यू ले लो, लेट y is equal to, अभी यहाँ पे 5 के टेबल में मुझे चाहिए लेकिन 2 को मुझे ज्यादा नंबर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ही कुछ आएगा 5 के टेबल का। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 ट्राई किया, एक यहाँ पे भी सोच के देखते हैं। 2.5 25 into 2 50 तो जाएगा 5 से, सो 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो। और 2.5 ग्राफ में लेना इज नॉट डिफिकल्ट। अगर ये मेरा ग्राफ है तो यहाँ पे आएगा 1, ये 2 और ये 3। तो इसके बराबर मिडिल का दैट इज 2.5। सो 2.4 रहेगा या 2.3 रहेगा तो थोड़ी तकलीफ होती है, बट 2.5 इज यू कैन इजीली गेट ऑन द ग्राफ। तो व्हाट इफ y इज इक्वल टू 2.5? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 2 into 2.5 upon 5। 25 2 50, so 2.5 into 2 5। 5 upon 5, तो x की वैल्यू मिल गई 1। Isn't that easy? ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो फाइनली टेबल कैसे बनेगा? तो x की वैल्यू थी 0 जब y भी था 0, तो 1, 2.5। अभी एक बात ध्यान रहे, अगर आपके टेबल में दोनों के टेबल में एक कोऑर्डिनेट कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वही आंसर आएगा। आंसर भी 1, 2.5 ही रहेगा क्योंकि दोनों लाइन उसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको ये कॉमन पॉइंट दोनों टेबल में मिल रहा है, तो ग्राफ में आपको 100% वही सॉल्यूशन भी दिख रहा है। आपको समझ में आ गया कैसे आपको डील करना है इक्वेशन के साथ? ये समझ में आ गया तो ग्राफ आप जरूर कर सकते हो। पिछला सब में मैंने पूरा ग्राफ भी एक्सप्लेन किया। In this question, I just want you to draw the graph. ग्राफ दिखाना is not a difficult thing. आप ट्राई कीजिए।